Hello dear students, as you know that we are doing the chapter methods to calculate national income, and in this we were doing how to calculate national income using income method, right? When we talk about income method is also known as factor payment method or distributed share method. So today we are going to start with some of the numerical ability zone. Yesterday we have done some theoretical part, and today we will continue with numerical ability zone. I will be explaining you about the numericals. So let's start with the numericals. So here is your first numerical. Calculate net national product at factor cost. So I will be explaining you here what is NNP8FC. NNP8FC is national income. Right? They have asked you to calculate NNP8FC. So, through income method, we calculate domestic income NNP8FC by adding compensation of employees plus operating surplus plus mixed income. Now let us see what is compensation of employees here. We get wages and salaries and employers' contribution. So this and wages and salaries, right? So these two things will be added in this. Sometimes compensation of employees is given directly in the question, but sometimes it has been divided into two parts, wages and salaries, or maybe it has been given wages and salaries in cash separate and wages and salaries in kind separate and employers' contribution separate. So these are the parts of the compensation of employees. If compensation of employees is also given here, then you don't have to add these two, because these two are already added in compensation of employees. So now what we have to do is COA is 200 plus 20 plus operating surplus. What we count in operating surplus is rent, interest, profits and royalty. So we'll add these four here. We don't write it separately. We add this 4 here, 35 and 5. What about mixed income? It is given mixed income of self-employed is 25. Whatever will be the value. So let us calculate. It is 330, right? 330. Why it is not okay. It is 330. Yes. So 330 is NNP8FC. What you have to calculate? You have to calculate NNP8FC. तो इसके नीचे right now I'm not having space. मैं ऊपर ही बता देती हूँ. आपको इसके नीचे करना है. NNP8FC is equals to net domestic product at factor cost. अब देखो convert किस में होना है? Net और factor cost तो same ही है. Conversion सिर्फ domestic और national में होना तो हम करेंगे plus NFIA. So here it will be NNP8FC कितना है? 330. NFIA कितना? Net factor income from abroad. जब from है तो sign as it is रहेगा plus minus 5. तो ये कितना हो जाएगा? 325. ये आंसर आ जाएगा. अब यहाँ पे हम लोग आगे सॉल्यूशन देख लेते हैं. यहाँ हम लोगों ने सारी चीजें अलग अलग बता रखी है ऑपरेटिंग सरप्लस की, बट इन नोटबुक यू हैव टू डू लाइक दिस कि ऑपरेटिंग सरप्लस में चारों चीजें एक साथ ऐड करो, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में ऐसे ऐड करो. COE प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. अब ये नीचे चार जो आएंगे ऑपरेटिंग सरप्लस के, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट, ये चारों मिलाकर हमारे हो जाएंगे ऑपरेटिंग सरप्लस. यू हैव टू राइट ऑपरेटिंग सरप्लस ओनली. ये मिला के आ जाएगा NNP8FC, देन NFIA, NNP8FC. तो COE कितना हो गया? 200 प्लस 20. एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस वेजेस एंड सैलरीज 25, रेंट 30, 15, 5 एंड 35. ऐड करके आया 330 NNP8FC प्लस NFIA. क्योंकि वो माइनस में गिवन है तो साइन चेंज नहीं होगा. आंसर इज 325. आई होप इट इज क्लियर टू यू. लेट अस स्टार्ट विद द न्यू न्यूमेरिकल. Calculate GNP at MP. You have to calculate GNP at market price. अब देखो इन सबको ऐड करके क्या आएगा? वेजेस एंड कंपनसेशन सब कुछ ऐड करके हमारा आएगा
NDP at FC, net domestic product at factor cost. तो let us start with it only. COE plus OS plus MI. COE कितना है? अब देखो वेजेस एंड सैलरीज गिवन है, कहीं पे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन गिवन है नहीं, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन गिवन है, तो हम इसे ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग कौन सा लेते हैं? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा वेजेस एंड सैलरीज। ऑपरेटिंग सरप्लस में आएगा रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट। रॉयल्टी इज नॉट गिवन, तो हम इसको तीनों को ऐड कर लेंगे, 100 प्लस 400 प्लस 40, राइट। मिक्स्ड इनकम इज गिवन, मिक्स्ड इनकम इज गिवन 400, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। नाउ ऐड इट, ये आ गया हमारा 1640। अब ये है NDP at FC, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज GNP at MP। तो GNP at MP मतलब अब आप खुद देख लो, ग्रॉस नेट से ग्रॉस पे जाना है, क्या करोगे? देखो NDP at FC, ये आप फेयर में नहीं करोगे, ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ वायरो, ये आप फेयर में नहीं करोगे, फेयर में आप इधर फॉर्मूला लगाओगे। तो नेट से ग्रॉस में जाना है तो क्या करोगे? प्लस डेप्रिसिएशन, अनदर डोमेस्टिक से नेशनल पे प्लस NFIA, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे प्लस NIT। यस, तो अब इनकी वैल्यूज पुट कर लो, 1640 प्लस डेप्रिसिएशन इज गिवन 50, नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड इज गिवन -10 प्लस NIT is given here subsidies is given, whether tax is given or not, look for tax, no, tax is not given, right, only subsidies is given। तो first we have to put the formula 0, क्योंकि IT minus subsidies होता है -100, तो ये मैं इसको यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ ऊपर, is equal to 1690 -10 -100, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? 1580, राइट। ये आंसर आ गया आपका। इसको अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, फॉर्मूला लगा दिया इन्होंने। बस यहाँ पे ध्यान में रखना, हम लोगों ने जो यहाँ पे लिया है, क्योंकि इतनी स्पेस नहीं थी कि सबको हम ऐड करके दिखाते, तो यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे लिया। ये सारा मिला के ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है। अब आप देखो इसको जरा, 700 प्लस 400 जो आपका मिक्स इनकम आया, प्लस 100 प्लस 40 प्लस, क्योंकि रॉयल्टी गिवन नहीं है तो हमने उसके लिए नॉट एप्लीकेबल लिखा है। ये आ गया हमारा 1640 NDP at FC। NFIA -10, डेप्रिसिएशन प्लस 50, सब्सिडीज -100। देखो क्यों -100 आया, यहाँ पे मैंने -100 लिखा था, आपको बकायदा प्रॉपर शो करना, बिकॉज NIT का फॉर्मूला क्या है? IT माइनस सब्सिडीज, तो आप उसको पूरा ब्रैकेट में करके फिर लिखोगे, ठीक है। -100, हमारा आंसर आ गया 1580। आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है। अब देखो, अब इसकी हिंट्स दे रखी हैं, हिंट्स देखो। अब आपको विजिबल में भी ना हो, पर मैं आपको बता देती हूँ क्या लिखा है। एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन टू SSS नॉट टू बी इंक्लूडेड, ठीक है। ये जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एम्प्लॉय की नहीं आएगी, एम्प्लॉयर की आएगी, पहली चीज। दूसरा, सब्सिडीज इट विल बी डिडक्टेड, क्योंकि उसकी वजह से मार्केट प्राइस कम हुआ, ये मैंने आपको फॉर्मूला के थ्रू बता दिया, ठीक है। तो अब इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम निकालना मतलब NNP at FC निकालना है, तो आप क्या करोगे? वेजेस एंड सैलरीज, दूसरा देगा कंट्रीब्यूशन टू SSS बाय एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स का है, तो ये दोनों ऐड होके हमारा क्या बन जाएगा? COE प्लस OS प्लस MI। ये क्या बन जाएगा? COE बन जाएगा 400 प्लस 50, इसको प्रॉपर आपको लिखना पड़ेगा, 400 प्लस 50 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है? अब देखो यहाँ पे रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट गिवन, लेकिन साथ में यहाँ ध्यान दो, यहाँ ऑपरेटिंग सरप्लस भी गिवन है, ठीक है। तो ये चीजें हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज दीज आर ऑलरेडी एडेड इन ऑपरेटिंग सरप्लस। व्हेन ऑपरेटिंंग सरप्लस इज गिवन टू यू, यू डोंट हैव टू गो फॉर इट्स पार्ट्स। तो ये ऑलरेडी गिवन है, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, हमें नहीं करना है इसको, हमें सीधे क्या लगाना है? ऑपरेटिंग
सरप्लस, तो हम सीधे लिख देंगे 130, मिक्स्ड इनकम इज 70। इन सबको ऐड करके हमारा क्या आ जाएगा, एनडीपी एट एफसी कितना आया 450 प्लस 130 प्लस 70 200 हो गया, ये हो गया हमारा 650, राइट। 650 तो हमारा आया एनडीपी एट एफसी, हमें निकालना है एनएनपी एट एफसी, तो क्या करेंगे प्लस एनएफआईए। अभी मैं यहाँ पे फॉर्मूला, क्योंकि नीचे हिंट्स आएगा फिर वो हिंट्स तुमको दिखेंगे नहीं, इसीलिए मैं ऊपर कर रही हूँ कम जगह पे, ठीक है। तो 650 प्लस एनएफआईए, एनएफआईए कितना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 5, इसको प्लस 5 कर दो, ठीक है। यहाँ से फॉर्मूला हटाते हो जाएगा 655। अब इसका तुम सॉल्यूशन एक बार देख लो, तुमको समझ में आ जाएगा। देखो सीओई कितना हो 400 प्लस 50, एमआई कितना हो गया 70, इंटरेस्ट, अब देखो रेंट इंटरेस्ट रॉयल्टी प्रॉफिट क्या दे नहीं रखा, बिल्कुल दे रखा है, बट फिर भी हम लोगों ने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि नॉट एप्लीकेबल बिकॉज ऑपरेटिंग सरप्लस इज गिवन हियर, तो यहाँ हमने डायरेक्ट ऑपरेटिंग सरप्लस ले लिया, ठीक है। कितना आ गया 650, एनएफआईए 5, आंसर आ गया 655। अब इसके हिंट्स देखो जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, इंटरेस्ट रेंट प्रॉफिट नॉट टू बी इंक्लूडेड एज ऑपरेटिंग सरप्लस इज गिवन, यू हैव टू पे अटेंशन टू दिस, कि अगर आपको ऑपरेटिंग, अगर जैसे ही हम बात करें कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आपको गिवन है, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, बढ़िया, ये आ गया कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सीओ इज ऑलरेडी गिवन, सो यू डोंट हैव टू गो फॉर एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन और वेजेस एंड सैलरीज, यू डोंट हैव टू लुक फॉर इट, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन है ना, हमें नहीं लेना, क्यों, क्योंकि हमें कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सीओई प्लस ओएस, कहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस क्या अलग से दे रखा है, नहीं, तो हम करेंगे रेंट प्लस आपका आ जाएगा प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी, तो कितना 200 प्लस 400 प्लस 10 प्लस 40, तो ये सब मिला के हमारा आ गया 650, 1000 हमारा आ गया मिक्स्ड इनकम, ये जो हमारी यहाँ पे गिवन है, इसका टोटल आ जाएगा 3650। 3650 का मतलब हमारा जो हमारा एनडीपी एट एफसी निकल के आया, इसके बाद हम ऐड करेंगे प्लस हमारा 20, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना क्या है, एनएनपी एट एमपी, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे, तो हम क्या करेंगे एनएफआईए ऐड करेंगे, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाएंगे तो हम एनआईटी ऐड करेंगे, तो जब ये सारी चीजें ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3770, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा एनएनपी एट एमपी। हिंट देख लो एक बार, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू ट्रिपल एस नॉट टू बी इंक्लूडेड, क्यों इंक्लूड नहीं किया हमने, ये चीज इंक्लूड नहीं की थी ना, क्यों इंक्लूड नहीं की थी, क्योंकि कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज वाज गिवन ऑलरेडी। फिर सब्सिडीज का हमने क्या किया, सब्सिडीज हमारी 20 दे रखी हैं, लेकिन हमें एनआईटी गिवन तो है, जब एनआईटी गिवन है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तो सब्सिडीज विल ऑल्सो बी इग्नोर्ड एज एनआईटी इज गिवन, right? I hope it is very much clear to you now. So I'm giving you, chalo, I'll be giving you more numericals on your WhatsApp group, on your Google Meet class. We'll continue with the numericals tomorrow, and I hope it is clear to you. Whichever your problems are, that will be answered. You just ask me on the WhatsApp group. Okay? All the best. God bless you.